Good evening, students. Today we are going to discuss the second part of MCS 2 to 6. Okay, and in the last class we have discussed MCS 2 to 6 part 1, that is data science. Now we are going to discuss about big data. This is a very important topic, and you should understand each and everything. And it's a very easy thing. The most important thing. It's not that tough. Okay, if you go through each and every topic step by step, so you can score a good marks. Okay, I'm not saying that big data, all of the big data, whatever is trending, everything I'm going to teach over here. But whatever is important from the examination point of view, that I'm going to discuss over here, and that would be much more than enough for you. Okay, now let's start. So, and sorry for the disturbance. Actually, I'm not well. Still, I have promised you, so I am starting the live session. Okay, oh, so hope you don't mind because you would get disturbed also because you know that I'm having cough and cold. That's why. So this is your academic counselor, Swarup sir. So today we're going to discuss about big data. So what is big data? Big data is a term for a collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data processing applications. मतलब क्या होता है, इतनी ज्यादा डेटा होता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको एकोमोडेट कर ही नहीं सकते. ठीक है. ठीक है, तो दैट इज बिग डेटा जिसको हम कर ही नहीं सकते. इट्स ओशन, इट्स ए फ्लड, इट्स ए ओशन ऑफ, it's more than Pacific Ocean, you can say, the data. The challenges include capture, curation, storage, search, sharing, transfer, analysis, and visualization. These are the challenges. We cannot capture whole of the data. Okay, storage, we cannot store that much data. Search, it's too difficult to search also. Sharing, transfer, analysis, and visualization. The trend to transfer large data sets is due to the trend to larger data sets is due to the additional information derived from analysis on a single large data set of related data as compared to separate smaller sets with the total amount of data, allowing correlations to be found on spot business trends, determine quality of research, prevent disease, link legal citations, combat crime, and determine real time रोडवे ट्रैफिक कंडीशंस. मतलब क्या होता है, इतनी सारे देखो कहाँ कहाँ से डेटा आते हैं. डिजीज से आते हैं, ये हॉस्पिटल से डेटा आ सकते हैं, बिजनेस ट्रेंड से आते हैं, उसे रिसर्च से आते हैं, तब रियल टाइम रोडवे ट्रैफिक कंडीशन, दीज आर ऑल डेटा जहाँ से हम लोग डेटा लेते हैं. हमेशा ही ये डेटा ऐसे करके बहुत सारे डेटा होते हैं. कहाँ कहाँ से डेटा आते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज बाइट? इट इज 1 grain of rice. Okay, kilobyte, it's a 1 crop of rice. Megabyte, 8 bags of rice. Gigabyte, 3 semi trucks of rice. Terabyte, TB is terabyte. Petabyte, 2 container ships of rice. Petabyte was blankets, half of Jaipur. Exabyte, blankets west coast or 1/4 of this. Zettabyte fills ऐसे पैसिफिक ओशन. अब देखो कितना zettabyte माने फ्यूचर है. ठीक है, तो इतनी सारा डेटा है. अब डेटा होते कैसे इतनी सारे. ठीक है, उसकी एक ही चीज है. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द स्मार्टफोन. स्मार्टफोन पे कुछ भी करो, दैट इज जनरेटिंग ए डेटा. Okay, yeah, mobile phones with Facebook, GPS, cameras, etc. They are always 24/7. They are generating data. Sources क्या? People, machine, organization, ubiquitous computing. तो डेटा, इतनी सारे डेटा हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो जेटाबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, या योटाबाइट, या ब्रोंटोबाइट, एस्ट्रोनॉमिकल साइज. ओके, यू शुड नो. ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए. उसका डेटा ऑन द इंटरनेट लाइव स्टैट्स, यहाँ से डेटा डेटा हमेशा हम लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं. अब सोर्सेज ऑफ डेटा जनरेशन कहाँ कहाँ से देख लो. यहाँ पे 4.6 बिलियन कैमरा फोन्स वर्ल्ड वाइड. 100 millions ऑफ जीपीएस एनेबल्ड. जीपीएस जहाँ होते हैं वहां पे सारे डेटा ले लेते हैं. 2+ billion पीपल ऑफ द ऑन द वेब बाय एंड 2011. 17 billion स्मार्ट मीटर्स यूज कर रहे हैं. पर कुछ कोई भी चीज, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है. ओके, एनीथिंग एनीथिंग इट कैन बी. अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो सारे ट्रैफिक कंडीशंस. तो ये जो ट्रैफिक कंडीशंस हमें हमें जो गूगल बताते हैं, इधर से जाओ, इधर से नहीं तो कहीं और से जाओ. दे यूज टू से दैट यहाँ पे रेड लाइट है, इधर से नहीं जाओगे, यहाँ पे जैम है. तो ये सारे क्या है, इट्स जनरेटिंग डेटा ओनली. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बिग डेटा. ये डेटा काफी होते हैं, इट्स ह्यूज. और ट्रेडिशनल आरडीबीएम्स क्या कहते हैं, इज सफिशिएंट टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा. डेटा बहुत फालतू भी होते हैं, लेकिन
ट्रेडिशनल आरडीबी में से वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, उनके उनके बस का नहीं है. To search it is traditional to find out if a particular topic was trending and would take so long that the result would be meaningless by the time it was computed. हाँ, जब तक वो कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तब तक क्या होगा, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है. अंडरस्टूड. जैसे आप लोग एनिग्मा एक मशीन के बारे में सुना है. 1940s में एक मशीन था जो जिसमें मैसेज ट्रांसमिट होता था. जर्मन्स क्या करते, मैसेज ट्रांसमिट करता था, वो बोलते थे वहां पे जाके अटैक करो. ओके. आप क्या करते, उसको हम क्या करते थे, अब हम एनिग्मा मशीन से हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. सपोज वो 4 घंटे में अटैक किया, डिकोड करते करते 2 दिन हो गया, तो वो जो 2 दिन में जो डिकोड किया तो इट इज ऑफ नो यूज. द सेम वे ओवर हियर ऑल्सो. ओके. Big data come up with a solution to store this data in novel ways in order to make it more accessible and also to come up with methods of performing analysis on it. चैलेंजेस क्या क्या है. बिग डेटा ये एक कॉन्सेप्ट है जो आया है ये सबको डील करने के लिए. स्टोरिंग, सर्चिंग, शेयरिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन. आईबीएम कंसिडर बिग डेटा 3 V's. क्या क्या है. वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है. वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आ रहा है. वेलोसिटी बहुत फास्ट आ रहा है डेटा. ओके. वैरायटी ऑफ डेटा इज कमिंग. इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, इसका अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. दिस इज द थिंग. वॉल्यूम का बारे में क्या लिखा है. एंटरप्राइजेस अवेश फॉर एवर ग्रोइंग डेटा ऑफ ऑल टाइप्स. ठीक है. टर्न्स 12 TB ऑफ ट्वीट्स क्रिएटेड ईच डे इनटू इंप्रूव्ड प्रोडक्ट सेंटिमेंट एनालिसिस. 12 TB ऑफ डेटा क्या करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं. किस तरह का सेंटिमेंट एनालिसिस. इट इज हेटफुल मैसेज, इट इज ए गुड मैसेज, इट इज पॉजिटिव मैसेज, वो उसमें कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करेंगे मशीन लर्निंग में. कन्वर्ट 350 मिलियन एनुअल मीटर रीडिंग्स टू बेटर प्रेडिक्ट पावर कंजम्पशन. हाँ, जो 350 मिलियन मीटर रीडिंग्स, कुछ भी मीटर रीडिंग्स है, सपोज आपके अपनी घर की है मीटर रीडिंग्स, उसको ले लो एंड थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स ना यू कैन कंप्यूट जो अगले महीने कितने आपके बिल आएंगे. यू कैन डू इट थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स हैं. वेलोसिटी क्या, स्पीड. समटाइम्स 2 minutes is too late for time. For sensitive processing, such as catching fraud, big data must be used as it streams into your enterprise in order to maximize this value. इसमें स्पीड बहुत फास्ट होना है. स्क्रूटनाइज 5 billion ट्रेड इवेंट्स क्रिएटेड ईच डे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्रॉड. इट्स नॉट इजी. वेलोसिटी स्पीड क्या, डेटा is beginning to generate fast and need to be processed fast. Online data analytics, late decisions, missing opportunities. मैंने फटाफट हमें करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड इट्स वेरी फास्ट. वेलोसिटी. रियल टाइम में क्या होता है, फास्ट डेटा होता है. रियल टाइम में जो भी डेटा आता है वो फास्ट डेटा होता है. ठीक है. वो आते रहता है, आते रहता है. हम उसी से डेटा को उठाना है. The process and innovation is no longer hindered by the ability to collect data, but by the ability to manage, analyze, summarize, visualize, and discover knowledge from the collected data in a timely manner and in a scalable fashion. क्या बोला यहाँ पे, summarize, analyze, summarize, visualize, and discover knowledge from the collected data in a timely manner and a scalable fashion. सारे डेटा को हम कैप्चर नहीं कर सकते. सारे कुछ डेटा को ले लिए, उसको समराइज किए और फिर क्या करें, हम ऐसे करके बार बार कर रहे हैं इन ए टाइमली मैनर एंड इन ए स्केलेबल फैशन. क्योंकि सारे डेटा को मैं कर ही नहीं सकता हूँ. आ रहा डेटा को लिए कर लिए, फिर उससे हमने निकाले, फिर एक एक सेम पॉइंट के बाद एक कुछ टाइम के बाद फिर हम डेटा लिए, फिर हम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं. अब रियल टाइम एनालिटिक्स और डिसीजन रिक्वायरमेंट. कस्टमर क्या है, कस्टमर जो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दैट आर रेलिवेंट एंड कॉम्पेलिंग. रिकमेंडेशन करते हैं ना आप लोग कुछ भी देखो, आप फ्लिपकार्ट में कोई सामान खरीदो तो क्या कहते हो, रिकमेंड करने लगते हैं. ठीक है. इंप्रूविंग द मार्केटिंग इफेक्टिवनेस बाय प्रमोशन व्हाइल इट इज स्टिल इन प्ले. प्रिवेंटिंग फ्रॉड एज इट इज ऑकरिंग एंड प्रिवेंटिंग मोर प्रोएक्टिवली. फ्रेंड्स, इन्विटेशन टू ज्वाइन ए गेम और एक्टिविटी दैट एक्सपेंड्स बिजनेस. हाँ, कोई गेम वगैरह में भी आप लोग ज्वाइन करते हो. ठीक है. तो वो सारे क्या है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा. वैरायटी क्या था, वैरायटी टाइप्स ऑफ डेटा. ये देखो मैंने अभी बताए थे, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ये सारे वैरायटी ऑफ डेटा हमारे पास आएंगे. ठीक है. जैसे रिलेशनल डेटा क्या होता है, टेबल्स, ट्रांजेक्शन, लीगेसी डेटा. टेक्स्ट डेटा क्या होता है, वेब, कुछ भी हो सकता है. सेमी स्ट्रक्चर डेटा एक्सएमएल. ग्राफ डेटा, सोशल नेटवर्क, सिमेंटिक, ये सारे पिक्चर्स आएंगे, ये सारी चीजें. स्ट्रीमिंग डेटा यू कैन ओनली स्केल द डेटा वंस. हम एक ही बार कर सकते हैं, बार बार उस डेटा को नहीं कर सकते क्योंकि न्यू डेटा पीछे से आ रहे हैं. ठीक है. एंड इट इज पुशिंग द डेटा. A single application can be generating or collecting many types of data.
बिग पब्लिक डेटा, ऑनलाइन वेदर, फाइनेंस एक्सेट्रा, ये क्या बिग पब्लिक डेटा है? दिस इज ऑल्सो बिग डेटा। हाँ, तो बिग थ्री वीज क्या है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, प्लस वन वैल्यू। वैल्यू ऑफ द डेटा, डेटा का कितना वैल्यू है। उसके साथ और भी बहुत सारे टर्म्स है, वेरासिटी, वैलिडिटी, वेरिएबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं है, यही मेन है हमारा, ये सारे, दीज आर द मेन थिंग्स। वैल्यू क्या होता है? इंटीग्रेटिंग डेटा, reducing data complexity, increasing data availability, yeah, unify your systems, unify your data systems together. All three above will lead to increased data collaboration, add value to your big data. तो डेटा क्या करें? इंटीग्रेट करेंगे, अलग वेराइटी ऑफ सोर्सेस से हम इंटीग्रेट करेंगे। वेरासिटी क्या होता है? रेफर्स टू द बायस, नॉइज एंड एबनॉर्मिटी इन डेटा, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा। नॉइज क्या होता है? कोई डिस्टर्बेंस होता है डेटा में। तो एग्जांपल ले लो, 4 है, 8 है, 12 है, अब 100, 1112 है, तो ये क्या हो गया? ये जो डेटा है, दिस इज अ नॉइज, ठीक है। और एबनॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैलेंस रेफर्स टू द कनेक्टेडनेस ऑफ बिग डेटा, सच इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ नेटवर्क्स, ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं सारे। ग्राफ्स हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं वो सारे। तो ये सारे टॉपिक आप लोग देखोगे। वैलिडिटी क्या होते हैं? एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द डेटा रिलेटिव टू ए पर्टिकुलर यूज, कॉजिंग अ स्टॉर्म इंटेंसिटी, सैटेलाइट इमेजरी वर्सेस सोशल मीडिया पोस्ट। ये सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंस देखते हैं। वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द डेटा रिलेटिव टू ए पर्टिकुलर यूज, इसका इसका और इसका यूज में देखेंगे किसका करेक्टनेस ज्यादा है, दैट इज वैलिडिटी। वेरिएबिलिटी क्या होता है? डेटा चेंजेस, हाउ मीनिंग द डेटा चेंजेस ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे डेटा चेंज होते हैं? लैंग्वेज एवोल्यूशन, डेटा अवेलेबिलिटी, सैम्पलिंग प्रोसेसेस, चेंजिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा सोर्स। Viscosity and volatility का था? Viscosity, data velocity relative to time scale of event being studied. Volatility, rate of data loss. Volatile क्या होता है? Rate of data loss and stable lifetime of data. Volatile simple rate of data loss. Okay. Dealing with volume. Distill big data down to small information. हाँ, बिग डेटा होता है, उससे क्या करेंगे? हम एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वो तो स्मॉल, माने क्या होता है? कुछ कोई बहुत सारा डेटा है, उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन, एक एक एरिया है, सपोज एग्जांपल ले लो, एक बस्ती है, उसमें लाखों लोग हैं, उस लाखों लोग से मैं क्या किया? कुछ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन निकाला है, जो वो लोग का जो ये है, व्हाट इज दैट नोन एज, वो लोग का जो देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट मोर देन +2, एग्जांपल ले लो। तो वो क्या हो गया? इतनी सारे डेटा है, उससे क्या किया? ये छोटा सा स्मॉल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। उस तरह दैट इज व्हाट इज डन ओवर हियर आल्सो इन बिग डेटा आल्सो। पैरेलल एंड ऑटोमेटेड वेज, पैरेलली होगा। यदि आप सीरियली करोगे तो इट विल टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, तो पैरेलली होंगे जो भी है। ऑटोमेशन रिक्वेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज एक होगा क्या? किस तरह की? स्टैंडर्डाइज बाई फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड्स होगा, स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यदि नहीं होगा, इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड, तो क्या होगा? डेटा कोई भी फॉर्म में होगा, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, वी कैन नॉट गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। तो क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड भी एक रखना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड से बिलो नहीं जाएगा डेटा, ठीक है। अब हार्नेसिंग बिग डेटा को कैसे हम निकाल सकते हैं? एक होता है ओएलटीपी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है? एक एग्जांपल ले लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, एग्जांपल ले लो, आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदे हो, दैट इज ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, आपने पैसे दिए, आपने खरीदा, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ओके। वो लैप, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, ये जी आपने जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन किए, ये तो बहुत सारा डेटा है, आप बहुत सारे डेटा को स्टोर किया गया एक जगह, उसके बाद उससे हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और डेटा कहीं स्टोर है, डेटा वेयर हाउस में, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? उसको लेके हम एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आगे हमारा बिजनेस और कैसे बढ़ाया जाए, तो दैट इज ओलैप। एक होता है आरटीए, ये तो क्या था? रियल टाइम एनालिटिक प्रोसेसिंग, बिग डेटा आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये बिग डेटा आर्किटेक्चर है, जो रियल टाइम में काम करते हैं, दैट इज बिग डेटा। ओलैप और ओएलटीपी भी रियल टाइम में होता है, ओलैप क्या होता है? रियल टाइम में नहीं होते, ये बाद में होते हैं, बाद में किया जाता है उसके काम। तो ये फिगर और ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। होप आई एम क्लियर। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा।
अब क्या होता, पुराना मॉडल क्या था, फ्यू कंपनीज आर जनरेटिंग डेटा, ऑल अदर्स आर कंज्यूमिंग डेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कोई जनरेट कर रहा है डेटा एंड ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमिंग डेटा। सब जनरेट कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं। पहले क्या होता, फ्यू कंपनीज जनरेट करते थे और सब कोई उसको कंज्यूम करते थे। दिस इज द मॉडल। ओके, उसके बाद व्हाट्स ड्राइविंग बिग डेटा। बिग डेटा से क्या हो रहा है, क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग होता है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, टिपिकल सोर्सेज, एक स्मॉल टू माइल्ड साइज डेटा सेट, इज बिजनेस इंटेलिजेंस। अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग, इसमें क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एंड मेनी सोर्सेज, ये सारे मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट आ गए ये सब में। हालांकि इसमें भी मशीन लर्निंग की यूज हुए जो हमने पहले पढ़े थे डेटा साइंस में। ठीक है, वट एवर वी हैव स्टडीड, ठीक है, तो वही सारे यूज हो रही है। अब क्यों बिग डेटा की जरूरत है, डेटा नहीं होगा तो फिर हम कैसे उसमें ड्रॉ करेंगे, इन्फरेंस होगा, कुछ भी हम प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, बिग डेटा एनेबलिंग टेक्निक्स। अब बिग डेटा क्या है, हडूप है, हडूप एचडीएफ है, हडूप यर्न, हडूप मैप रिड्यूस, हाइव, कैसेंड्रा, अपाचे जूकीपर, अपाचे एचबेस, स्पार्क, स्पार्क एमलिव, स्पार्क, नो सिक्वल, नो सिक्वल बिग डेटा के लिए यूज होता है हमारा, स्पार्क स्ट्रीमिंग, काफका। Big data is used for a collection of data sets so large and complex that it is difficult to process using traditional tools. हम ट्रेडिशनल टूल से हम कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे टूल्स यूज करेंगे। दीज आर ऑल टूल्स, यू कैन से दीज आर द टूल्स। ओके, a recent survey says that 80% of data created in the world are unstructured, उसको हम क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। Okay, our challenge is how we can store and process this big amount of data. In this lecture, we'll discuss the top technologies. कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, ये सारे टेक्नोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे की जरूरत नहीं है आप लोग को। स्पेशली जरूरत है मैप रिड्यूस, मैप रिड्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हडूप एंड मैप रिड्यूस, हडूप मैप रिड्यूस, आई देखो अपाचे हडूप। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर बिग डेटा, फ्री है, इट इज ओपन सोर्स, इट इज टू बेसिक पार्ट्स, एक होता है एचडीएफएस, एक होता है मैप रिड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब देखो पेपर में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। HDFS क्या होता है, Hadoop distributed file system is the storage system of Hadoop which splits big data and distributed across many nodes in a cluster। बहुत सारे नोड में हम डाल देते हैं, एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, क्लस्टर के अंदर बहुत सारे नोड होते हैं, उसमें डाल देते हैं। स्केलिंग आउट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, स्केलिंग हार्डवेयर रिसोर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, और फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट ज्यादा होता नहीं है, और कोई फॉल्ट होगा तो इट कैन टॉलरेट ऑल दोज थिंग्स। अब मैप रिड्यूस कहता है प्रोग्रामिंग मॉडल दैट सिंप्लीफाइज पैरेलल प्रोग्रामिंग। क्या होता है, मैप क्या होता है, अप्लाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं, समराइज करते हैं। मैप अप्लाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं, समराइज करते हैं। गूगल यूज मैप रिड्यूस फॉर इंडेक्सिंग वेबसाइट्स, कौन सा वेबसाइट टॉप में है, कौन सा नीचे है, सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, ये सारे करने के लिए हम मैप रिड्यूस यूज किए, गूगल हैज यूज्ड। ओके, Hadoop क्या, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड अ फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग द मैप रिड्यूस पैराडिग्म। An important characteristic of Hadoop is the partitioning of data and computation across many thousands of hosts and executing application computation in parallel close to their data। क्या होता है, पार्टीशन, डेटा को पार्टीशन करते हैं और अलग अलग होस्ट में डाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वो उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। हाँ, तो Hadoop क्या है, इज ए अपाचे प्रोजेक्ट, ऑल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल भाया द अपाचे ओपन सोर्स। Apache open source. Yahoo has developed and contributed to 80% of the core of Hadoop. Hadoop है HDFS, या एक Hadoop distributed file system है, map reduce. Okay, pig zookeeper चुकवा और originated and developed at Yahoo। ये सारे ये प्रोग्रामिंग पैराडिम्स है, जो मीन्स कुछ याहू में हुए, कुछ क्लाउडेरा भी डेवलप हुआ याहू में। हाइव क्या हुआ, फेसबुक, डेवलप्ड एट फेसबुक। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एसी की जरूरत है। आप देखो हडूप प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, एचडीएफएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क। मैप रिड्यूस क्या होता है, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एचडीएफएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइल को। एचबीएस क्या होता है, कॉलम ओरिएंटेड डेटा सर्विस। पिग क्या होता है, डेटा फ्लो लैंग्वेज एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। हाइव क्या होता है, डेटा वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर।
डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे डेटा होते हैं अलग अलग सोर्सेस का लाके उस डेटा को हम स्टोर करेंगे, तो दैट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर हाइव। जू कीपर का डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेटिंग सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड माने क्या होता है, कहाँ पे क्या डेटा है, क्या है वो सारे करने के लिए जू कीपर। कीपर मतलब क्या होता है, जो ध्यान रखते हैं हर चीज की। चुकवा क्या है, सिस्टम फॉर कलेक्टिंग मैनेजमेंट डेटा, ठीक है, मैनेजमेंट डेटा को ये करने के लिए। एवरो क्या, डेटा सिग्नल सिस्टम। ये सारे आप लोग थोड़ा पढ़ लोगे, इसके फोटो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हडूप प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हडूप क्या है, ये क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक नेम नोड है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, नेम नोड को एक्सेस करता है, नेम नोड के थ्रू से क्या होगा, सारे डेटा हम देख सकते हैं। नेम नोड क्या करे, डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को एक्सेस करके वो क्लाइंट को जो भी आप ये क्या बोलते हैं उसको, क्वेरी दोगे, क्वेरी का रिप्लाई करेगा, हम आगे देखेंगे थियोरेटिकली। Single name a master server that manages the file system namespace and basically regulates across all these files from clients, and it also keeps track where the data is on the data nodes। देखो ये क्या करता है, नेम नोड क्या करता है, सब ट्रैक रहता है, कहाँ पे कौन सा डेटा है, रेप्लिकेशन कहाँ पे रेप्लिकेट किया हुआ, सब कुछ का खबर इसको होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, क्लाइंट को सारे इन्फॉर्मेशन देता है। मल्टीपल डेटा नोड्स क्या होता है, डेटा नोड तो मल्टीपल ही होगा, जहाँ पे डेटा होते हैं वो तो मल्टीपल होते हैं, क्योंकि डेटा को क्या करें, चारों तरफ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल डेटा नोड्स होंगे। Typically one per node in a cluster. So you are basically using storage which is local. Basic functions क्या है, manage and storage, manage the storage of the data node, read and write request of the clients, block creation, deletion and replication is all based on instructions from the name node। ये सब functions, functions किसकी है, ये जो आपका है, ये आर्किटेक्चर ऑफ HDFS, इसका फंक्शन है। अब मैप रिड्यूस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैप रिड्यूस एग्जीक्यूशन इंजन ऑफ हडूप। हडूप का जो इंजन है, एग्जीक्यूशन इंजन, दैट इज मैप रिड्यूस। उसका कंपोनेंट्स क्या क्या, दो है, एक है जॉब ट्रैकर, एक है टास्क ट्रैकर, ठीक है। मैप रिड्यूस का क्या क्या कंपोनेंट्स, एक जॉब ट्रैकर है, एक टास्क ट्रैकर है। जॉब ट्रैकर इज होस्टेड इनसाइड द मास्टर, ये देखो, जॉब ट्रैकर ही जो वही है। दिस इज द मास्टर, ओके, is hosted inside the master and it receives the job execution request from the client। क्लाइंट से उसको इट रिसीव्स द जॉब एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो फिर क्या होता है, जॉब ट्रैकर से, जॉब ट्रैकर क्या होता है, होस्टेड इनसाइड द मास्टर, जॉब ट्रैकर फिर काम करने लगता है। Its main duties are to break down the received jobs, that is big computations, in smaller parts, allocate the partial computations, that is task, to the slave nodes। छोटे छोटे नोड का वो दे दिया जाता है, ये सारे डेटा नोड्स है। Slave nodes, monitoring the progress report of task execution of the slave। The unit of execution is the job। समझ आया, जॉब ट्रैकर क्या करता है, सारे डेटा इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। These are the slave nodes, this one is the master and this is the slave actually। टास्क ट्रैकर क्या करते हैं, इज द मैप रिड्यूस कंपोनेंट ऑन द स्लेव मशीन। ये देखो, स्लेव मशीन देखो, टास्क ट्रैकर, slave machine, as there are multiple slave machines, multiple task trackers are available in the cluster। its duty is to perform computation given by the job tracker। job tracker का जो काम होता है वो क्या कौन करता है, टास्क ट्रैकर करेगा। द टास्क ट्रैकर विल कम्युनिकेट द प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स टू द जॉब ट्रैकर। जब काम हो जाएगा वो जॉब ट्रैकर को क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। द मास्टर नोड कंटेन्स द जॉब ट्रैकर एंड नेम नोड्स, वेयर एज ऑल द स्लेव नोड्स कंटेन द टास्क ट्रैकर एंड डेटा नोड। स्लेव नोड में टास्क ट्रैकर और डेटा नोड होता है और कुछ नहीं होता, स्लेव नोड में टास्क ट्रैकर, डेटा नोड। और मास्टर नोड में क्या होता है, जॉब ट्रैकर होता है, या टास्क ट्रैकर तो खुद होता ही, और कहते जॉब ट्रैकर होता है और ऑल स्लेव नोड्स, सब कुछ होते हैं उसके पास। इसके ये दिस इज द बॉस, ये सबको एक्सेस कर सकते हैं, एवरी इट कैन एक्सेस एवरीबॉडी, लेकिन स्लेव्स कैन नॉट, क्योंकि मास्टर ही सब कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है, मास्टर ही ऑर्डर देते हैं कुछ भी करने के लिए। एग्जीक्यूशन स्टेप्स देखते हैं, द क्लाइंट सबमिट्स द जॉब टू जॉब ट्रैकर। देखो एग्जीक्यूशन स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉब ट्रैकर आस्क नेम नोड द लोकेशन ऑफ द डेटा, आस्क नेम नोड कहाँ पे डेटा है वो नेम नोड बताएगा, ठीक है। एज पर द रिप्लाई फ्रॉम नेम नोड, नेम नोड से जो भी रिप्लाई होगा, जॉब ट्रैकर आस्क रिस्पेक्टिव टास्क ट्रैकर्स टू एग्जीक्यूट द टास्क ऑन देयर डेटा। फिर वो जॉब ट्रैकर को पकड़ेगा, जॉब ट्रैकर आस्क रिस्पेक्टिव टास्क ट्रैकर
जॉब ट्रैकर क्या करता है, टास्क ट्रैकर को बोलता है टू एग्जीक्यूट द टास्क ऑन द डेटा, क्योंकि वो डेटा किसके पास होगा, टास्क ट्रैकर के पास होगा। और जब नेम नोड बता देगा तो जॉब ट्रैकर क्या करेगा, उसी टास्क ट्रैकर को बोलेगा जिसके पास डेटा है वो काम करने के लिए। ऑल द रिजल्ट all the results are stored on some data node and name node is informed about the same. Okay, all the results कहाँ stored on the some data node, ठीक है, and the name node is informed about the same। उसके बाद name node को बता दिया जाता है। the task inform the job completion and progress to job tracker। job tracker फिर क्या कहता है, job tracker informs the completion to client को बता देता है, client contacts the name node and retrieves the result। name node से सारे result ले लेता है, name node के पास ही सब कुछ होता है। ओके, अब ये आ गया मैप रेडियूस, ये आपका टॉपिक है। मैप रेडियूस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होप ये वाला समझ आ गया, ये टास्क ट्रैकर जॉब ट्रैकर कर क्या रहा है, ये आप लोग को करना है, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। मैप रेडियूस इज ए प्रॉब्लम। आप मैप रेडियूस में चलते हैं, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। ओके, मैप रेडियूस क्या है, इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल एंड नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है, यूजिंग मैप फंक्शन की वैल्यू पेयर्स टू जनरेट ए इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर। एंड रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, मर्जेस ऑल इंटरमीडिएट वैल्यूज टू द सेम इंटरमीडिएट की। जहां पे सेम इंटरमीडिएट की होगा वो सारे ज्वाइन कर लेगा। वो रिड्यूस फंक्शन करेगा। मैप फंक्शन सिर्फ वो इंटरमीडिएट की वैल्यू बना के आगे बढ़ा देगा, रिड्यूस फंक्शन को दे देगा। मेनी रियल वर्ल्ड टास्क आर एक्सप्रेसिबल इन दिस मॉडल। Programs written in this functional styles are automatically parallelized and executed on a large cluster of computer machines. The runtime system takes care of the details of partitioning the input data. Input data partition मतलब क्या, अलग अलग जगह पे पार्टीशन करके रख रहे हैं। शेड्यूलिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन अक्रॉस अ सेट ऑफ मशीन्स, हैंडलिंग मशीन फेलियर्स। कहीं यदि मशीन फेल हो गया तो कोई बात नहीं, उसका उसके क्या होता है, रेप्लिका होता है, तो कोई और मशीन से हम डेटा ले लेते हैं। एंड मैनेजिंग द रिक्वायर्ड इंटर मशीन कम्युनिकेशन। This allows programmers without any experience or with parallel and distributed systems to easily utilize the resources of a large distributed system। हाँ, इसमें क्या होगा, इजी हो जाएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, डेटा कहीं ना कहीं तो है और पैरेलली, ठीक है, कहीं ना कहीं होंगे तो वहां से यूज कर सकते हैं। टिपिकल मैप reduce computation processes many terabytes of data on thousands of machines। hundreds of MapReduce programs has been implemented। hundreds of MapReduce programs implement होते हैं। आप distributed file servers chunk servers file is split into contiguous chunks। what is contiguous? contiguous मतलब एक ये चंक हो गया, सपोज ये 2002 है, यहाँ पे एक चंक बन गया 2004, ठीक है, एक चंक बन गया 2006, एग्जाम्पल ले लो। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, दो। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दो। तो ये कॉन्टिग्यूसली कहीं होगा, ठीक है। मेमोरी, कॉन्टिग्यूस मेमोरी जो हमने एरे में पढ़े थे। टिपिकली each chunk is 16 to 64 MB। each chunk replicated usually 2x or 3x, मतलब 2 times or 3 times you can say। try to keep replicas in different tracks, अलग अलग ट्रैक में रखा जाता है। मास्टर नोड को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नेम नोड इन HDFS। इसे इंपॉर्टेंट है। स्टोर्स मेटा डेटा, माइट बी रिप्लिकेटेड, ये भी रिप्लिकेट हो सकता है मास्टर डेटा, मास्टर नोड। क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर फाइल एक्सेस, talks to master to find chunk servers, connects directly to chunk servers to access data। ठीक है, अब मैप रिड्यूस में एक एग्जांपल मैंने लिया, इसी से मैंने कंप्लीट किया पूरे लेक्चर को। तो इस लेक्चर को मैंने फास्ट पेस में ऑब्वियसली करा है, लेकिन बहुत सारे बातें हैं, आप लोग एक बार देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना, नोट्स बना लेना, इसी से ही आएंगे एग्जाम में, नथिंग आउटसाइड ऑफ दिस। मैप रिड्यूस में क्या था, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो डायरेक्टली कर देंगे, प्रोसेस इस रिकॉर्ड सीक्वेंशियली एंड इंडिपेंडेंटली। जैसे वन स्क्वायर करेंगे, वन फोर हो गया, वन का वन हो गया, टू का फोर हो गया, थ्री का नाइन, फोर का 16। ओके, रेडियस प्लस 1 4 9 16, ठीक है, 1 4 9 16। रेडियस प्लस मतलब क्या हो गया, सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आएगा, जो भी वैल्यू कैलकुलेट ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। तो वही है। तो देखो इतनी सारे रिकॉर्ड था, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल रिकॉर्ड आ गया, सिंगल रिकॉर्ड। तो इतनी इतनी सारे मैसेज का क्या होगा, एक एक आउटपुट आया, एक एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दैट इज डन बाय रिड्यूस। हमारा जो मैप क्या करता है, मैप जो डेटा होता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे बढ़ा देते हैं। रिड्यूस क्या करते हैं, उससे एक छोटा समरी समरी बना के आगे ये कर प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज रिड्यूस, सिंपल। ओके,
तो दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी से इतनी ही है। ठीक है, तो इतने में आप लोग करो, यही सारे कॉन्सेप्ट है जो आपका बिग डेटा में है, ये सारे करो। और थोड़ा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, दैट विल कम ऑन जनवरी। ठीक है, एक एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे भी बनाऊंगा आप लोग का, क्योंकि दिस टॉप पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट पेस में कराया, और यू आल्सो गॉट डिस्टर्ब, तो होप यू डोंट माइंड। ठीक है, और आप लोगों को यदि वीडियो, ये लेक्चर यदि पसंद आए तो गिव इट लाइक, और कमेंट्स, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द लेक्चर। ओके, at least feedback is most important, so that I can improve myself in the next lecture. Okay, thanks, all the best for your exams, and please go. And one more thing, I will be coming with one more video of MSc 031. Okay, cyber security using Python. I'll get a proper video for you. Whatever the important topics are there, everything will be covered over there. And if you go through that video, the lecture, go through that live lecture. I'll take a live lecture, so everything will come from that lecture only. So I will prepare a proper lecture for that also.